Uh, so finally, it's live. Hello and welcome all, and thanks for joining us on a Saturday evening. I don't know how many of you are working, how many of you are enjoying your Saturdays, and we try to make it a more memorable one. So initially, I would like to introduce about women with wings. So we don't have any kind of wings, okay? So we are not birds. We are humans just like you guys. And why does this women with wings came into the existence? Because we are breaking our own stereotypes, we are breaking our own mindsets, we are challenging ourselves on a daily moment, daily lives, every possible thing that we wanted to do. And the reason why we are here today to listen to Manisha Sharma, who happens to be one of the inspiring leaders into our generation, and maybe like through getting to know through her life journey, getting to understand how she has been breaking the ceilings and all, can go ahead and give you an insight. At the same time, this is all your journey. So obviously, whatever we have learned through our own experiences might not be the same like yours, but maybe you can get to know something, and maybe that can help you in dealing with the situation that you are into. So Manisha ma'am, it's all up to you now, and let's go ahead and hear about your interesting insights about break the ceiling time moments. Okay, thank you so much, Pragya, for the little introduction that you've given about me. I'll keep the session in Hindi and English as I normally do, so that most of the people who are listening us out there and the purpose of the session is completely fulfilled. So हम इसको English में रखेंगे और मेरा completely मानना है कि हम एक बार glass ceiling नहीं तोड़ते हैं, हम बार-बार वो glass ceiling तोड़ते हैं. It is a lifelong journey. चाहे वो आपका बचपन हो, चाहे जैसे आप ग्रो अप कर रहे हैं, आपका करियर आ जाता है, आपका कॉलेज आ जाता है, आपकी मैरिज है, एज अ फीमेल यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट इज अनदर लाइफ दैट यू लिव ऑल टुगेदर. तो मुझे लगता है कि ग्लास सीलिंग हम बार बार ब्रेक करते हैं. It is not one go that we break the glass ceiling. It is a continuous journey that we live. At times we are breaking these ceilings on a daily basis. You know, they are a regular thing for us because we have to prove ourselves. हमें खुद को साबित करना पड़ता है, हमें अपने फियर से बाहर निकलना पड़ता है, हमें ये सोचना पड़ता है कि अच्छा ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या ये सही होगा नहीं होगा, फॉर फैमिली, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो. और उस वक्त पास्ट एक्सपीरियंसेस ही नहीं, हमारा समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, वो चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं मुझे लगता है. तो ग्लास सीलिंग तोड़ना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आई कंप्लीटली बिलीव. इट इज नॉट वन गो. सो जैसे आप सेशन में हम लोग मूव करेंगे और आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं वैसे आपको या हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हम उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाएंगे कि ग्लास सीलिंग तोड़ी कैसे और उसके लिए क्या करना जरूरी होता है. ओके, सो जैसे हम लोग इंग्लिश में बात करते रहेंगे, सो आई विल आल्सो कम बैक टू द हिंदी पार्ट समटाइम्स. Yes. ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग चाइल्डहुड पे. सो द फर्स्ट इंस्टेंस जो भी आपके माइंड में आता है कि ठीक है आपने फर्स्ट टाइम अपनी ग्लास सीलिंग ब्रेक की होगी, व्हाट वुड दैट बी? And once you're done, I might share something of mine also. Okay, so that's again going to be another one. Okay, so Pragya, glass ceiling, at our point of time when I was growing up, एक बाइसिकल होना बहुत बड़ी बात होती थी. मुझे याद है, आई वाज बोर्न इन अमृतसर एंड ब्रॉट अप देयर. लेटर वी केम टू दिल्ली, बाद में हम दिल्ली आ गए थे. एंड जलंधर इज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. तो जलंधर से मेरा बाइसिकल मेरे फादर ने मंगाया था और वो रेलगाड़ी में आना था. इट हैज टू कम थ्रू रेल. आई रिमेम्बर दैट यू नो ज़ील आई हैड एज अ किड. मैं स्टेशन पे वेट कर रही थी अपने फादर के साथ, बहुत ही लग के कि आज मेरा बाइसिकल आने वाला है, और कितने घंटे मैं खड़ी रही. और मुझे याद है कि फादर ने जब वो चलाना सिखाया मुझे, तो साइड पे जो उसके सपोर्ट्स लगे होते हैं, वो सपोर्ट लगे रहे कुछ टाइम. लेकिन लेटर माय फादर पुल्ड अप करेज. उन्होंने मुझे बोला कि एक सारा टाइम तुम सपोर्ट पे ही नहीं चला सकती हो इस बाइसिकल को, तुम्हें सपोर्ट हटाने पड़ेंगे. तो सपोर्ट हटाए और पीछे से उन्होंने जो है पकड़ के रखा, और वो फियर जो था एज अ किड, वो तोड़ना और उससे बाहर आना, I think that itself was a big thing for me as a kid. And the later instance जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ये था कि
हम क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन पंजाब एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो कॉमन लैंग्वेज वॉज पंजाबी और हिंदी जो घर पे बोली जाती थी. आई वॉज गुड एट राइटिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश अच्छा लिख लेती थी, पोइट्री लिख लेती थी, बट व्हेन इट केम टू स्पीकिंग इंग्लिश मेरी हालत खराब हो जाती थी. मैं सर्दियों में भी पसीनों में होती थी और मैं बहुत फिलर्स यूज कर रही होती थी. मेरे अंदर फियर था और मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ बच्चों के साथ आज की जनरेशन में, बिकॉज हम स्किलिंग में हैं. तो बच्चे कई बार हम खड़े करते हैं एक्सम्पोर के लिए या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो बच्चों की वही हालत होती है. तो मेरी भी वही हालत थी. 4th से 5th में जब हमने स्टैंडर्ड चेंज किया या मेरा स्कूल चेंज हुआ, फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड आई शिफ्टेड टू DAV. And my bua was, I'm blessed that she was there and she's MPhil English. तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि she's my niece, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा कतराती है, डरती है, घबराती है, तो आप इसका कॉन्फिडेंस हमेशा पेप अप करके रखिएगा. तो टीचर्स ने ये ध्यान में रखते हुए कि ये लिख अच्छा लेती है, मेरे को एक दिन अचानक से क्लास में खड़ा कर दिया कि आप नेशनल फ्लैग पे बोलिए फॉर अ मिनट एंड इन इंग्लिश. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट डे जिस दिन मुझे अंग्रेजी में ही कंप्लीट बोलना था और 1 मिनट के लिए बोलना था और वो नेशनल फ्लैग पे बोलना था. मुझे अच्छे से याद है कि मैंने चिट्टा, एक वर्ड होता है विच मीन्स वाइट इन पंजाबी, मैंने बोलते बोलते मैं वो बोल दिया और पूरी क्लास पेट पकड़ के हंस रही थी. क्लास में 40-42 बच्चे थे और मैं नर्वस हो रही थी. मुझे याद है सर्दियां थी और मैं स्वेट कर रही थी बहुत बुरी तरीके से और ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी. तो वो इंसिडेंस मुझे आज भी याद है. अगर वो इंसिडेंस नहीं हुआ होता मेरी लाइफ में तो शायद मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे इंप्रूव नहीं करती. क्योंकि मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स को भी बोलती हूँ कि हमारे पास लाइफ में 3 सिचुएशंस होती हैं. या तो हम बिल्कुल डिप कर जाएंगे, आज के बाद मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी. दूसरा कि मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, ठीक है, जो हो रहा है, लेट देम लाफ, यू नो. थर्ड इज दैट नहीं, मैंने इस सिचुएशन को एज चैलेंज लेना है और मुझे खुद को प्रूव करना दैट यस आई कैन स्पीक इंग्लिश and I can come out of my fear of facing people and speaking and communicating in English. The reason why we are communicating in English right now at the session is because we are wanting to address more people and we are wanting to reach out to more people, right? But that point and this point, I feel I'm very, very thankful to those 42 kids of my class. जो मुझ पे हंसे और शायद हंसे नहीं होते तो मैं वो इम्प्रूवमेंट खुद में नहीं लेके आ पाती, या मैं आज लैंग्वेज में जितना इम्प्रूव कर पाई उतना इम्प्रूव नहीं कर पाती. बिकॉज उसके बाद मैं बहुत कॉन्शियस हो गई कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, कैसे बोलने जा रही हूँ, वर्ब कौन सी यूज करनी है, नाउन प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, कौन सा, am I speaking correct, am I not speaking correct. So that became a very, very important aspect of my life. And right from 5th standard to 7th standard, in a span of 2 years, I was winning speech declamation competitions for my school, which is DAV, at the inter-school level and at the state level also. So that fear I was able to break. That was the first major glass ceiling, I would say, I broke. And that was fear of being able to stand in front of people, face people, speak in front of them courageously without feeling any kind of nervousness, any kind of fear. You know, and when I am training my trainees nowadays, अभी कब सेशन लेने का मौका मिलता है जब मैं बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस कर रही होती हूँ, तो मैं उनको खड़ा करती हूँ क्लास में और मैं बोलती हूँ अच्छा बोलना शुरू करो, बोलते नहीं है. मैं बोलती हूँ अच्छा सीधे सामने दीवार देखो, बच्चे नहीं है, ऐसा इमेजिन करो कोई भी नहीं है क्लास में, नहीं बोल पाते हैं फिर भी. देन आई हैव अ वेरी पेट डायलॉग व्हिच आई टेल देम. आई सेड किसी की उधारी देनी है तुमने? सो दिल से नहीं मैम. ये सबकी उधारी देनी है क्या? नहीं मैम. सो मैंने बोला जिसने देनी है वो भी दिल्ली जैसे शहर में चौड़े में घूमता है कि हाँ देनी है, यू नो, ठीक है. तो मैंने कहा तुमने तो नहीं देनी है, तुम फिर भी घबराए हुए घूम रहे हो और तुम बोल नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी. सो आई फील पीपल नीड टू कम आउट ऑफ दैट. दैट इज वन. 2 इज एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बिल्डअप हो जाता है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा. सो आई ऑलवेज टेल देम कि कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है. आप जो बोलना चाह रहे हो वो सामने वाला व्यक्ति समझ पा रहा है या नहीं ये जरूरी है. आपने क्या बोला जरूरी नहीं, आपने कैसे बोला जरूरी है. ठीक है, क्या बोला हर एक को पता होता है और उसमें इंग्लिश और लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो उसमें किसी तरीके की कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए मन में कि मुझे अंग्रेजी भाषा नहीं आती. दैट इज एज सच नॉट आवर लैंग्वेज. अगर आप किसी अंग्रेज के पास जाएं और उसको बोलें कि आप हिंदी बोलिए, वो नहीं बोल पाए तो वो किसी भी हालत में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा. But because English is a major business language as far as our country is concerned, and it's an international business language also, therefore it becomes pertinent that everybody knows this language. तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए बिना उनके अंदर एक
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाए हुए। अगर वो बोल पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर वो गलती कर दी, इट्स ओके, दे शुड बी एबल टू कम आउट ऑफ इट क्विकली। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने गलती कर दी तो मैं बोलूंगा ही नहीं। और मुझे इस बात से, अगर हम और पीछे चले जाएं प्रज्ञा, जब हम चलना सीखते हैं, हमारी माँ हमारी बाजू पकड़ के हमें चलना सिखाती है, राइट? अगर हम एक बार गिर जाएं और हम उसके बाद भूल जाएं कि अच्छा मैं एक बार गिर गया, चोट लगी, अब तो हम खड़े ही नहीं होंगे और चलूंगा ही नहीं, तो मुझे लगता है शायद दुनिया में कोई बच्चा चल ही नहीं पाएगा। लेकिन वो एक बेसिक ट्रेट है हमारा, जो हम बचपन में ही कर चुके हैं, जिसको हमें लाइफ लॉन्ग फॉलो करना होता है। आप बाइसिकल से गिर गए तो वो फियर, कि मैं गिर गया, अब मैं चलू बाइसिकल पे चढ़ूंगा ही नहीं, या मैंने गाड़ी एक बार ठोक दी चलाते चलाते, तो मैं अब गाड़ी चलाना ही नहीं सीखूंगा, ठीक है? वो एक फियर जो है, उसका मूल मंत्र केवल ये है कि आप बचपन में जब आप चलना ही शुरू करते हैं, तो आपके अंदर ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि किसी ने फील नहीं की होती, ये फियर आप में डाला नहीं गया होता। आप सहज भाव से अपनी माँ को फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपकी बाजू पकड़ के, आपके पिता आपकी बाजू पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं, और आप धीरे 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 चलना शुरू कर देते हैं। आप कितनी बार गिरते हैं आपको ये भी नहीं याद होगा, लेकिन अगर वो फियर आपने आउटकम नहीं किया होता उस वक्त, तो आप आज की तारीख में क्या चल रहे होते? नहीं चल रहे होते। सिमिलरली, इफ आई हैड नॉट कम आउट ऑफ दैट fear of facing people and to be able to communicate in English very well, I think I would not be standing here today. मैं आज यहाँ पे नहीं खड़ी होती, क्योंकि उसके बाद मैं दिल्ली जैसे शहर में आ गई, अमृतसर से, जो एक स्मॉल टाउन है। दिल्ली जैसे शहर में आके मैंने बच्चे देखे जो आई लव यू लिख के टीचर को चौक पे मारते थे, पीठ पे, ठीक है? तो मेरे लिए वो एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। मुझे लगता था ये कैसे बच्चे हैं, मैं कौन से शहर में आ गई, ये क्या हो रहा है मेरे आसपास। आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड व्हेन आई एंटर्ड दिल्ली in the 8th grade. But slowly and steadily, you start gelling up with people, you start becoming a part of culture, you start building that confidence, you start removing that nervousness in you, of being able to face people and being able to gel well with people. So I think we break the glass ceilings every day, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। हम वुमेन विद विंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों केसेस में हम ग्लास सीलिंग हमेशा, हर रोज, कई बार हर दिन, कई बार हर घंटे में ब्रेक करते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हमने वो ब्रेक कर दी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए। अगर इंटेंशन ही नहीं है तो हम वो ग्लास सीलिंग कभी ब्रेक नहीं कर सकते। हम उस फियर से कभी बाहर नहीं आ सकते, उस एंजाइटी से नहीं आ सकते, उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। सामने वाला व्यक्ति हमें केवल मोटिवेट कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति, चाहे हमारे पिता हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे भाई बहन हो, अगर हम किसी फियर में हैं, वो हमें केवल मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन खुद सीढ़ी चढ़ के उस कुएं से बाहर आना और ये देख पाना कि केवल उस कुएं का दायरा ही आसमान नहीं है, आसमान बहुत बड़ा है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी हिम्मत से और कितनी जल्दी उस कुएं से बाहर निकलते हैं या उस सीलिंग को ब्रेक करते हैं। That's true. And moreover, thanks to your class, had it been not given them across such kind of a thing, तो शायद आज हम लोग इस तरह से बात नहीं कर रहे होते और आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। Yes. Okay, so breaking the ceiling kind of a thing. I also remember one incidence of my class because when I was in till second, third standard, I was the only girl into my entire group of 100 boys, where I was the one, climbing with them onto the hills or maybe the trees, where we used to go and playing all sort of sports. So had it been some kind of a thing कि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने या मेरे आसपास के जितने भी families थे, they would have kept this thing into my mind. Okay, you are a girl, you're not supposed to go out with the boys. Okay, you're not supposed to climb the trees or the hills. या उनकी तरह मार नहीं खानी है या कोई sports नहीं play out करना है. So things would have been different for me also. But then sometimes consciously, unconsciously, we work out these things on our own. So at the end, it's you only who has to drive the rest of the path of your life. Nobody else is going to come back and push you. They can only tell you कि ये उनकी जर्नी थी, उन्होंने ऐसे किया, लेकिन आपकी जर्नी ऐसी हो जरूरी तो नहीं. So that's how it is. Absolutely right. I feel हमारे माता पिता या हमारे आसपास का माहौल कंड्यूसिव होना जरूरी है, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं प्रज्ञा, क्योंकि मैं स्किलिंग में रही हूँ काफी टाइम, और मुझे लगता है कि लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक आप ये मान के चलेंगे कि आपको सब आता है और आपका ग्लास फिल्ड है, सामने वाला व्यक्ति कितना भी पानी डाले वो पानी बाहर ही निकलेगा, सो आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे। सो मैंने अपने आसपास ऐसे ट्रेनीज भी देखे, ऐसे बच्चे भी देखे जिनके पेरेंट्स नहीं है,
जो एनजीओ के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास, या कोविड में भी जिनके पेरेंट्स या मदर या फादर अनफॉर्चुनेटली दे हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज, लेकिन उन बच्चों ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। मुझे कई बार ये भी लगता है कि शायद मैं उस सिचुएशन में, परमात्मा नहीं करे अगर होती, तो पॉसिबिलिटी कि क्या मुझ में इतना करेज होता आज की तारीख में, शायद नहीं होता। तो आई थिंक फैमिलीज कंड्यूसिव होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कंप्लीट आपका डिसीजन है कि आप कितना जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आते हैं, आप कितना करेज जो है वो लेके आते हैं खुद में। आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बी योर ओन बॉस, you have to decide what you want to do with your life. You have to make it, you have to break it. It is your life, right? And मैं एक बात और बोलूंगी कि हालांकि ये बड़ा डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करना, लेकिन it has been proven by science that it takes only 5 seconds for the mind to decide a yes or a no. Okay, so अगर for example morning में आपने अलार्म लगाया और आपने उसको बंद करना है, तो केवल 5 सेकंड के लिए आपका माइंड वेट करता है उस पे, आप बंद करेंगे या आप उठ जाएंगे. So if you just count 5, 4, 3, 2, 1 in your mind and you get up at the 1, I think you make a change. So it is only a difference of yes or a no that makes our life, or that changes the direction of our life. Fine. So with this, we have talked a lot about our childhood experiences and all. Let's move a little bit to the adulthood side. So anything that you wanted to talk about, maybe your +2 days or maybe your college days, which again helped you out, one moment that changed your life. Okay, so I would say college days, school days itself, when I was growing up, I was bad at seeing a frog being dissected, so I decided मैंने bio नहीं लेनी है, because I used to feel that I'm not that strong at heart that I can see a small animal or something being dissected on the table. That is one. Two is that my decision of taking NCC, which is National Cadet Corps, in the college days, actually brought a lot of change in me. Because NCC में आपके अंदर जितना डिसिप्लिन वो बिल्डअप करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको उस वक्त समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि कहाँ फंस गए. आप बड़े बड़े पिक्चर्स जो हैं पानी के, वो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहे हो, केवल 2 लड़कियां अलाउड हैं, उसके अलावा अगर तीसरे का हाथ लगेगा तो उसको डंडा पड़ेगा. ठीक है, सो वो 2 लड़कियां जो हैं वो पिक्चर लेके ऊपर जाएंगी, वो पानी जो है उससे फर्श धोएंगी या दे विल वॉश दैट. फिर उसके अलावा आपको ड्रिल करनी है. मैंने शूटिंग लिया था एज अ सब्जेक्ट, जिसमें राइफल, और हमें लगता था कि अरे राइफल ही तो है, बट व्हेन वी हेल्ड इट वाज वेरी हेवी, सो धीरे धीरे समझ में आया दैट थिंग्स आर नॉट दैट इजी. आपको शोल्डर पे रख के चलाना है, आपको एम करना है, और एट द सेम टाइम आपका हार्ट ट्रेम्बल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेम्बल करेगा तो आपका टारगेट जाएगा. सो फोकस रहना सिखाया एनसीसी ने, डिसिप्लिन रहना सिखाया. कैंप्स में जहां भी गई वहां पे थोड़ा सा डिसिप्लिन इनबिल्ट हुआ कि कितने बजे उठना है, क्या करना है, अपना काम खुद से कैसे करना है. आई थिंक and I very strongly feel that every youth of the country or the nation, उनके लिए शायद मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि वो एनसीसी में 1 या 2 साल या जितने भी वो बिताएं, बिकॉज वो चीजें आपको बहुत ज्यादा इनेबल करती हैं. आपको पता भी नहीं चलता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो रही होती है. फ्रॉम not that I wouldn't say I was shy, I was not shy, but जितना भी थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस कम था, वो मेरा ओपन अप करने का काम एनसीसी ने किया. So that is what I would say. And the negative was that I had started walking very manly. That I had started walking very manly. Or we used to have a friend called Monica, who used to drive a bullet that point. तो हमें लगता कि वाह, मतलब ये लड़की ये बुलेट चला रही है. She was very lean, but she was able to hold that heavy machine, and she was able to drive. I think these things they bring change in your life. उसमें नेगेटिव ये था कि कुछ लड़कियां, हमें कई बार वॉक डाउन करना पड़ता था फ्रॉम मैत्री टू द मेन रोड.
आई वॉज इन मैत्री साउथ कैंपस। तो कई बार कुछ फ्रेंड्स होती थी, वो बोलती थी कि मोनिका और मनीषा साथ में चलेंगे तो हम सेफ फील करेंगे, बिकॉज बिकॉज हमारा चाल थोड़ा वैसा था। तो आई थिंक दीज आर लिटिल लिटिल इंस्टेंसेस वेयर you break your own ceilings, and it is a tough job, it is not an easy job, because पहला आपको ये पता होना चाहिए कि सीलिंग है, और आपको सीलिंग से बाहर निकलना है। काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो सीलिंग में ही रहना चाहते हैं प्रज्ञा, जो उस सीलिंग से बाहर नहीं निकलना चाहते, या जो उस कुएं से या उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो कोई एफर्ट करना नहीं चाहते, सामने वाला भी कोई एफर्ट कर रहा है तो वो उसको हेल्प नहीं करते, वो उसी सिचुएशन में आई वुड से वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं एट टाइम्स, यू नो। सो उसके बाद भी हालातों को जिम्मेदार ठहराना अपनी, अगर आप लाइफ में सक्सीड नहीं करते तो आई थिंक दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आप कंफर्ट जोन में भी रहें और आपको सक्सेस भी मिल जाए, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। राइट, सो दैट इज टू ब्रेक आउट ऑफ योर ओन फियर, अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके आगे कोई भी आपकी हेल्प कर पाएगा, या आप खुद की अपनी हेल्प कर पाओगे, मोर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन टू एनीवन एल्स. So let's instead for talking about those girls. Okay, so had it been the situation कि like somebody was eve teasing them or anything as such, they do not wanted you or anybody else, and they would have spoken back to those guys या कुछ भी करते. So शायद उनके दिल दिमाग से ये डर हमेशा के लिए निकल जाता, या उन्हें लाइफ टाइम कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि ठीक है मैं रोड पे अकेले वॉक कर रही हूँ, so I need somebody. A man or woman, irrespective of that, we don't need anybody. So at the end of the day, या फिर आप आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपके साथ हमेशा कोई हो आपका फॉल बैक करने के लिए या आपके सपोर्ट के लिए, ये भी तो जरूरी नहीं है ना. So who else is going to be there? Absolutely right, Pragya. I think the thought that I am enough is very, very important. Not only the thought, but to be able to live that statement as a part of your life. So मुझे मालूम है कि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के. यू कैन नॉट बी इनफ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट? बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू बी इनफ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. यू कैन ट्राई टू बी इनफ in your patience, you can try to be enough in your courage, you can try to be enough in your happiness, you can try to be enough in being able to adapt, you can try to be enough in facing, in your ability to face people, you can try to be enough in coming out of a situation quickly and not being there for a long time, you can try to be enough in learning quickly, right? So you can try to be enough of a giver, somebody who gives back to people around, and somebody who's not pulling out or putting negative energy in people around. So I think we cannot be perfect, we are human beings. हम लोग learn पूरा जिंदगी करते रहते हैं, लेकिन और इनफ होना हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन सामने है उसमें हम इनफ हो पाए, यू नो. सो हर एक में अपनी एक नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है. मुझे लगता है कि परिवार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशंस में, और कोविड से बेहतर कोई सिचुएशन नहीं जिसने हमें ये सिखाया हो प्रज्ञा की व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. हमने मीलों मील लोग चलते हुए देखे केवल अपने परिवारों से मिलने के लिए, राइट? और छोटी सी बात हो जाती है और परिवारों में हमने देखा है कि वो डिस्कॉर्ड हो जाता है. यहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं कि अरे इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल नहीं लेके दिया, या इन्होंने मुझे मोबाइल नहीं लेके दिया. तो मैं कई बार ये चीजें बोलती हूँ कि जो उन्होंने दिया है आप उस पर क्या ग्रेटफुल हैं, आर यू ग्रेटफुल इन दैट? और जो बात हमने पहले डिस्कस की कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, आप उनकी सिचुएशन देखिए, आप उनसे लर्न करिए, हाउ आर दे मैनेजिंग. सो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी के पास अनफॉर्चुनेटली वो फैमिली सपोर्ट नहीं है तो मुझे लगता है कि अपने आप में ही वो एक करेज होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन माई केस, इन योर केस, जैसे हम डिस्कस करें, our families were supportive. I was able to speak out. My father and my mother and my aunt, my family has been the best friend that I ever had. कुछ भी सिचुएशन इवन आज की तारीख में होती है, मैं घर पे आके चबड़ चबड़ बोल रही होती हूँ, यू नो, और मेरी फैमिली जो है वो सुन रही होती है. मुझे कई बार ये भी लगता है कि वो भी दिन के पूरे टायर्ड होंगे, यू नो, उन्होंने भी पूरा दिन काम किया है और अब वो मेरा भी सुन रहे हैं, बट दे आर वेरी पेशेंट इन लिसनिंग टू मी.
एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि हम अपने उन लोगों के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं जो लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग फेक करते हैं प्रज्ञा, तो हमारा एक मुखौटा जो है वो लोगों का बॉस के लिए, एक मुखौटा बच्चों का, मैंने देखा एक गर्लफ्रेंड के लिए, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा वो उतरेगा तो दूसरा मुखौटा दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, और वो मुखौटा उतरेगा तो मदर के लिए एक मुखौटा है या एक मास्क है, और फादर के सामने वो कोई और पर्सनैलिटी लेके आ जाते हैं बच्चे। तो मैंने देखा एक सिचुएशन जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, या दैट इज अ प्रोफेशनल सिचुएशन, हम कहीं पे भी वहां पे कुछ बोल नहीं सकते, तो हम कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, हम फैमिली पे जाके वापस एक्सप्रेस करते हैं। पर लेकिन वहां पे भी हमें आई थिंक कंट्रोल में रहना चाहिए कि वो उनको भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाए, वहां पे भी कुछ ऐसी बातें नहीं बोलती जाए जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डीप हिट करें। तो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अवेयरनेस भी हमेशा होना, कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और कैसे बोलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और क्या करने जा रहा हूँ, और क्या ये सामने वाले को फायदा करेगा या नुकसान करेगा। आई थिंक वो चीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो स्पीकिंग इट लाइक राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट सिचुएशन, वो तीनों ही चीजें एक साथ अगर सिंक में हो, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, बट वो रेयरली हो पाता है, एंड वी कीप ऑन Absolutely, ट्राइंग टू डू दैट एट एवरी पॉइंट इन टाइम. So yes, we absolutely. had We make the situations right or wrong by not reacting. right, or maybe more than reaction, what I feel कि we have to respond appropriate. वो reaction की जगह respond होना चाहिए, but वो हर बार reaction निकल के आता है. Right, That's the right, mistake. right, 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 right. Ultimately, we all are humans, so we all have flaws, and that's okay. To accept it the way it is, but still improvisation तो करना भी जरूरी है. We can't Absolutely, move ahead कि ठीक है absolutely. fine, we are like this only, we'll do it like this only, and this is बिल्कुल, how it's gonna be. So बिल्कुल, COVID बिल्कुल, obviously has taught us a lot of things. Okay, सबसे पहले self-reliant होना, where you have to manage yes, the entire household yes, force, yes, work, yes, 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 and everything as such. So yes, yes, yes. we had loads of fun parts into your childhood, into your moving to the adulthood part. So let's talk about some of the challenging situation, maybe related to your work, maybe the first job that you have been doing, or maybe your masters, where you find one of the breakthrough point. Okay. So I'll share that, when I started doing my MBA, and I was also doing a job alongside. So it was a part-time MBA and I was doing a job alongside. I had taken up marketing and IT as majors and finance as minors. So I actually was laughed at by all the boys, कि अरे marketing ले लिया, तुम्हारे बस का नहीं है, लड़कियों के बस का नहीं है marketing करना, बड़े आए marketing करने वाले, and all those phrases we used to hear. We were only two girls who had taken up marketing. And I think every time somebody would poke me, हमेशा मेरे अंदर से आवाज निकलती थी कि तुम देखना, मैं प्रूव करके बताऊंगी कि मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ या सेल्स कर सकती हूँ. But when I started, with a proper marketing profile, I understood there was a lot of hard work that was required. That was one. Two was you needed to be very, very सेल्फ रिलायंट, जो कि ज्यादातर औरतें नहीं होती हैं. टायर कोई और बदल देगा, धक्का स्टार्ट गाड़ी कोई और कर देगा, कूलेंट कोई और, पानी कोई और डाल देगा, गाड़ी हीट पे चली गई तो मुझे नहीं पता क्या करना है, और so the basic things which you need to understand when you are driving are not known. केवल ड्राइविंग आने से मुझे लगता है कि काम खत्म नहीं हो जाता है. और ये भी फैमिली से मैंने सीखा, स्पेशली फादर से, जिन्होंने बोला कि अगर आप गाड़ी चलाने चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी में मेजर अगर कुछ फ्लॉज हो जाते हैं तो आपको क्या करना है. सो गाड़ी की सुई अगर हीट पे चली जाती है तो ऑब्वियसली आपको इग्निशन ऑफ करना है और गाड़ी साइड पे लगा देनी है. ये नहीं कि गाड़ी जो है सामने से धुआं बोल गई और आप बीच में बैठी हुई है एज अ फीमेल और आपको नहीं पता कि क्या करना है सिचुएशन में. ठीक है, गाड़ी आपको हिंट दे रही है कि मैडम उतर जाइए प्लीज. ठीक है. सो आई थिंक ये सिचुएशंस जो है मुझे फेस करनी पड़ी जब मैंने सेल्स का प्रोफाइल पकड़ा, हार्डकोर सेल्स का. और टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है सेल्स में, जैसे आपको पता है, तो प्रेशर भी खूब होता है, और वो प्रेशर भी फेस किया. आई वॉज लकी कि जो मेरे प्रोफेशनल सीनियर्स थे उन्होंने खूब पेशेंस रखी मेरे साथ और मुझे काम खूब सिखाया और मैंने सीखा भी.
और बाय डिफॉल्ट यू कैन से आई वाज अ गो गेटर, मतलब मुझे लगता था अच्छा ये काम कैसे नहीं हो रहा मेरे से, मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रही, या एक और ट्रेड की बार बार फॉलो अप करते जाना उस चीज को बार बार। आई नेवर यूज्ड टू गिव अप कि अच्छा ये नहीं हुआ, यहाँ से कुछ ऑर्डर नहीं मिला तो इसको गिव अप कर दो, छोड़ दो, अच्छा आगे देखेंगे, बिकॉज आई टू मेक अ मार्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन से आई वाज ट्राइंग टू prove myself to myself. मैं हमेशा आई ऑलवेज थिंक दैट मोर देन कॉम्पीटिंग विद एनीवन, सामने वाला कितना कमा रहा है मैटर नहीं करता है, सामने वाला लाइफ में कौन सी स्टेटस पे मैटर नहीं करता है, सामने वाला आपसे कितना आगे है मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप क्या फोकस है खुद को आगे बढ़ाने में लाइफ में, दैट मैटर्स, एंड दैट इज यू अगेंस्ट योर सेल्फ। आपको खुद को पुल आउट करना पड़ता है हर रोज, अगर आप किसी डिप में हैं तो आपको खुद को निकालना पड़ता है हर रोज, अगर आपका मन नहीं कर रहा है जॉब पे जाने का तो आपको जाना पड़ता है हर रोज, अगर आपको मालूम है कि अरे इस महीने का टारगेट अचीव नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने कैसे करूंगी, आपको करेज लेके आना पड़ता है कि मनीषा शर्मा पिछले महीने तुमने 1 करोड़ का टारगेट कर लिया, अच्छा अभी बॉस ने 20% बढ़ा के दे दिया टारगेट, अभी वो 20% बढ़ा के भी तुम कर सकती हो, वो बिलीफ खुद में लाना पड़ता था। So I would say that every day it was, as I shared, it was a glass ceiling which I broke. That is one. Two is समझ में आया कि गाड़ी भी चला रहे हैं और वन पॉइंट टू अदर पॉइंट भी जा रहे हैं प्रज्ञा, उस वक्त जीपीएस नहीं होता था, गूगल बाबा नहीं होता था, कोई भी बाबा नहीं होता था, तो तो सड़क पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 8 9 10 those initial years of hardcore sales profile that I had. तो आप सड़क पे किसी को पूछ रहे हो, दिल्ली ऐसा सिटी है, वो उस वक्त समझ में आना शुरू हो गया क्योंकि गाड़ी चलानी शुरू की तो समझ में आया कि आप किसी से सड़क पर रास्ता पूछोगे, भैया अच्छा यहाँ जाना है तो कैसे जाए, सीधा चले जाइए, अच्छा भैया यहाँ जाना है कैसे जाए, सीधा चले जाइए, तो सीधे के अलावा कोई कुछ बताता नहीं था, ठीक है। तो आई यूज टू हैव अ मैप ऑफ दिल्ली विद मी इन माई कार, एंड आई यूज टू सर्च ऑन द पेजेस कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है तो मुझे कौन सा रूट पकड़ना है, वो चीजें भी थी। गाड़ी में ही बैठ के लंच कर पाना एज अ सेल्स पर्सन, साइड की किसी दुकान से चाय पी पाना एज अ फीमेल, you know, that is what I had to, because you don't have any option, आपको कोई ऑफिस नहीं होता, आप फील्ड पे हो, आप सेल्स प्रोफाइल में हो, आप 1.2 अदर घूम रहे हो केवल, और आपको अपना दिन का टारगेट पूरा करना है, राइट। एट टाइम्स my car was running 125 kilometers a day. So it was from Paschim Vihar to Gurgaon to Greater Noida and back to Paschim Vihar. So and I'm talking about that part of the year of Greater Noida where you had very less traffic, you know. So I used to touch Pari Chowk and then LG office. That was one of the accounts that I had. So उसके अलावा, इन challenges के अलावा, गर्मी धूप, खाना गाड़ी में ही खाना है, सैंपल दिखाना है, ऑर्डर लेना है, यू नो टेंडर लेना है गवर्नमेंट ऑफिसेस से एज अ फीमेल, एंड एट द सेम टाइम I also knew how would I be dressed, what clothes do I wear. So I remember I used to be covered, and you know, I used to just go out whenever I used to go out for a sales pitch, even that point. और इसके अलावा जो challenges आपको कार देती है, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की, तो वो challenges जो ऐसे हैं कि वो आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे जाते हैं, उसके लिए आपको कोई कुछ सिखाता नहीं है, मतलब केवल ये बताया गया था कि कूलेंट में पानी डालना है तो आपका हाथ कवर्ड होना चाहिए, बिकॉज कूलेंट जो है वो काफी गर्म होता है और आपका हाथ जल सकता है। सो आई रिमेम्बर दैट फ्रॉम तिलक नगर फ्लाईओवर आई वाज कमिंग डाउन, और मेरी गाड़ी ने हीट पे सुई दिखा दी मुझे कि मैं नहीं चल रही बाबा, आई गिव अप। और रात के 8:30 का टाइम था, और मैंने वो लेफ्ट में गाड़ी लगा दी ब्रिज के नीचे, और मुझे याद है कि ट्रैफिक ऊपर से आ रहा था, एंड आई कॉल्ड माय फैमिली कि ऐसे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई तो क्या करें। तो माय फादर टोल्ड मी, मनीषा किसी टो वाले को बुला लो, तो टो वाले को फोन किया, वो रात के उतने बजे दे वर चार्जिंग मी $2,500, 2008 9 आई थिंक। So I said they are charging me this much, and so my father said, मनीषा अच्छा एक काम करिए, आप गाड़ी को बंद करिए और घर आ जाइए, वहीं से तो गाड़ी हम बाद में ले लेंगे, टुमारो मॉर्निंग किसी को भेज देंगे मैकेनिक को, वो ठीक कर लेगा गाड़ी। एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ दैट मनीषा इट इज योर कार, और वो तुम्हारी ही मर्जी नहीं मान रही है। तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, और मैंने स्टीयरिंग जो था वो पकड़ के धक्का लगा के गाड़ी को लेफ्ट टू राइट
I think almost half few meters you can say. जो एक रिलायंस फ्रेश का शॉप था वहां पे रुका, कोल्ड वाटर की 2-2 लीटर्स की बॉटल ली वहां से, और हाथ पे कपड़ा डाला, कूलेंट खोला और उसमें पानी डाला और रिक्शा वाले ढूंढे और उनको कुछ पैसे दिए और सेकंड गियर पे गाड़ी धक्का स्टार्ट करवा के घर पे ले आई। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जिस वक्त मैं उनको 10-10 रुपए या 20 रुपए बोल रही थी, ऑफर कर रही थी कि मेरे कोई गाड़ी धक्का स्टार्ट कर दीजिए, तो उनको लग रहा था कि ये थोड़ी शायद शी इज नॉट फाइन, औरत है क्या धक्का स्टार्ट की, इसको आता भी होगा या नहीं, so you get that look from those people, but I finally reached home. That was one instance. We had that car gave me a fantabulous experience, that of a mechanic, female, that tire bhi flat ho gaya to Manisha Sharma aapko lagana padega, because nobody will come to help you. So I think ek wo empowerment ka belief जिस पे हम बात करते हैं बार बार, that is again when you start feeling, not feeling, believing, thinking, doing, that you don't need anyone, you can do this on your own. राइट अगर आप मूवीज की तरह वेट करते कि ठीक है आपका प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, सफेद घोड़े भी तैयार होके आपको लेके जाए, एंड देन ही सो वे कार आल्सो, मतलब घोड़े से रस्सी बांधकर कार को भी खींच के ले जा रहा है, एंड यू आर सिटिंग एंड गोइंग अलोंग विद I हिम, wish तो those fairy शायद ये tales नहीं are होता. come true, but they are actually not feasible. I wish Bollywood can make movies like this rather than showing us that kind of a Absolutely, thing, तो absolutely, reality में Pragya, कहीं I होती नहीं completely है. agree. I vouch for it. मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है विमेन एम्पावरमेंट को इस तरीके से शो करने का, जो कि एक्चुअल में विमेन एम्पावरमेंट नहीं है. तो अगर आप कुछ पिछले वेबिनार, सॉरी, जो आप नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखें या आप मूवीज देखें, तो आपको दिखाई देगा कि जो औरतें सिगरेट पी रही हैं, जो औरतें एक तरीके कपड़े पहन रही हैं, या जो औरतें पार्टिंग कर रही हैं, लेट नाइट कर रही हैं, या व्हाटएवर दे आर डूइंग, उनको एम्पावरमेंट शो किया जाता है. दैट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट. मैं बार बार ये बात बोलती हूँ. दैट इज अ वे ऑफ लाइफ. आपका जीवन जीने का तरीका है, ठीक है. आपको शराब पीना है, पीजिए. आप औरत हैं, आपकी लाइफ है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, वी हैव अ डेमोक्रेसी, और आप जैसे भी लाइफ जीना चाहती हैं आप जिए. लेकिन उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना कि वो वुमेन एम्पावरमेंट है, आई थिंक दैट इज वेरी 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 रॉन्ग मैसेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दैट वी आर गिविंग. मैचिंग ही कपड़े होने चाहिए आपके, आप फैशन ऐसे फॉलो करें, आपके बाल ऐसे हों, आप परफेक्ट होने चाहिए, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो यू आर नॉट दैट, यू आर नॉट अ फीमेल एट ऑल. सो फेयर एंड लवली की एड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ग्लो एंड लवली, या जो भी उसमें वो नाम चेंज कर रहे हैं. आई थिंक ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो अब हो रही हैं. एट द सेम टाइम वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे मैंने बात किया, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना इज रॉन्ग. वुमेन एम्पावरमेंट इज एनीथिंग विच इज एम्पावरिंग अदर वुमेन. अगर आप एक औरत होकर दूसरी औरत को एम्पावर कर रहे हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. अगर आप सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. अगर आप नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. अगर आप एक बहुत अच्छी मदर हैं और आप अपने बच्चे को एक बहुत, अगर बेटा है स्पेशली, तो उसको बहुत अच्छा बेटा बना रही हैं, जिससे बाद में कल को औरतों को डरना नहीं पड़ेगा, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. सो आई थिंक, और आप खुद को इक्वल मान के चलती हैं, लेकिन आपको फिर भी रिजर्वेशन चाहिए, मतलब मुझे वो चीजें समझ में नहीं आती हैं. आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट. So I feel women empowerment is not smoking, is not drinking, is not going out, partying, etc. It is, that can be a way of life. That is your life. You decide how you live your life. But that is not women empowerment. Women empowerment can never be anything except empowering others. That is why India में हम 50% almost पे हैं as the strength of the country, and that is why हम लोग गॉडेस को, या हम आज पहली नवरात्रि हमने शुरू की है, हम माँ की पूजा करते हैं, बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, and that is always a positive energy. That can never be a negative energy. It can kill negative energy, it can transform people into better people, but it can never be a negative energy. Right. So coming back to the women empowerment, and also it's like paying your own bills when you're going out with a guy. Okay, not expecting him to pay your bills and all, and then you decide that what shift timings or what office timings that you wanted to work upon, not your family, not your spouse is deciding upon.
and lot many other things, lot many examples we can give it across. Okay, so when you have to travel at night, you don't need a partner to along with your side, going out and doing anything, any emergencies and all. And we have been getting some good comments coming across live from the Facebook. So Vatsala is the one who is supporting us today. I'm not sure where are the other ones. Okay. So she has given us the first comment, brave women you are. And Manisha, it's for you. And there are no fairy tales in real life when we spoke about that car incident. Okay. So, with this, let's move ahead to the other challenges of the life that you have been facing, and then, like, what actually did you happen to learn through them? And maybe as a suggestion that you can give across to the others who are going through not exactly the similar things, because our life experiences will always differ as humans. It can never be same. What you have experienced, I can't do it until unless I'm into Yeah, that yeah, situation. yeah, Okay. absolutely right. So Pragya, the journey from the childhood till the period that I was working for companies is what I've shared already with you. But then we had a journey which is your marital life also, right? So that journey actually uh, also broke a very very important glass ceiling for me. Okay, so I would say fortunately I didn't have a good marriage. It lasted for almost 3 months, had dowry issues, had that stuff happening, a lot of anxiety, lot of fear during that phase. I think मेरी family नहीं होती तो शायद मैं आज नहीं होती. That was the phase that I went through, right from 2007 um, till almost 10 years or 11 years of a legal journey also, or a legal fight also. And why the fight? Because I gave birth to a child who is a special child. Okay, so he's suffering from Down syndrome, which is just one extra chromosome. So I was asked to give up the child. I was asked to give him to the NGO or to my parents to be brought up to, and go back home to my husband, which I declined and kept declining for almost 10 years. So I think that actually broke a glass ceiling, a very, very important glass ceiling for me. That was, you start believing that you don't, you know, that if it's a failed marriage, it's okay. That if you are a mother to a special child, it is okay. I mean, it took time. It was not one day. Initial I was asking questions to myself, why me? ये शुरुआत में मैंने खुद से सवाल किए कि मैं ही क्यों, मतलब मुझे एक ऐसा बच्चा क्यों, मतलब. पर फिर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज फैमिली ने भी कराया और मैंने भी किया कि परमात्मा, यूनिवर्स, एनर्जी उसी को टफ पेपर देता है जिसको उसको मालूम होता है कि ये टफ पेपर कर लेगा. सो इट हैज गिवन मी अ टफ पेपर, यू कैन से, टू क्लियर, which is in the form of my son Rudraksh. And मुझे लगता है कि आप एक बार एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं सिचुएशन को, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, आप वो वॉल के अगेंस्ट आप अपना सिर मारते रहते हैं, तो आप खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, आप अपना ही खून बहा रहे हैं. आपको नदी जो है वो किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट फ्लो कर रहे हैं, तो आप डबल एनर्जी लगा रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट वांट यू टू फ्लो इन दैट डायरेक्शन. सो आई थिंक काफी बार हम लोगों को बदलने के चक्कर में, the people should change. People don't change, Pragya. They don't change unless and until they realize that they have to change. Right? So a simple realization in my mind and my heart and soul, that if a man cannot be of his own blood, which is my son, how can he belong to me as a wife or as a life partner? You know, that realization actually broke another glass ceiling for me. And I would say that was a journey, which empowered me a lot. It empowered me. I thank my husband. I am whatever I am because I was very focused. I was very, very focused. 2010 mein, I received my son's report from Gangaram that he's a Down syndrome kid, which means that he has one extra chromosome. And I was lucky that during the same time, I got an offer from Centum Learner Training Center CSR project. So I had to, I was given the responsibility of starting the project in Delhi NCR. बच्चों के लिए हमने एक project शुरू करना था जिसमें हमने बच्चे skill करने थे, train करने थे, place करने थे companies में, specifically with retail. So that happened in 2010.
और काउंट बच्चों का कम नहीं होता था, एक महीने में हमारे पास 150 बच्चा होता था, और वो सारा बच्चा लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आता था। सो वो एक satisfaction मिलना शुरू हो गया, and I started getting energy from my son that Manisha, this is the point where you have to give back to the society. Okay, you have done sales, you have done all, now it's your time to give back, you know. तो हमने बच्चे स्किल करके प्लेस कराने शुरू किए, और वो बच्चे जिनके फादर किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, lower strata of society से आ रहे हैं, obviously we were not charging anything to them, and that was a big hit, I mean, that project, because I was given, I thank my bosses, they gave me complete authority, complete power to take any kind of initiative I wanted to take. तो मैंने जो डेफ म्यूट बच्चे थे उनके लिए भी हमने इनिशिएटिव लिए, हमने ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल की फीमेल्स जो रेप विक्टिम्स थी उनके लिए भी हमने इनिशिएटिव लिए, हमने तिहाड़ जेल के इनमेट्स के लिए भी इनिशिएटिव लिया, हमने उनको भी ट्रेन किया, स्किल किया, प्लेस किया, और कुछ बच्चे आज भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, you know. So I think that turned my life completely. That turned my life completely, because I started taking my job with 220% passion, you know, that Manisha, if you can make these lives, if you can touch these lives positively, if you can enable these families, एक बच्चा आपने enable कर दिया, आपने पूरा परिवार enable कर दिया, वो कमाने लगता है. So वो journey प्रज्ञा आज तक चल रही है. I complete my job with 100% passion. I ensure that I'm giving back to the maximum extent. I am emotional with my trainees. They are emotionally connected with me too. So I think that was the biggest turning point in my life. अब मुझे लगता है कि again I would say मैं शायद वो नहीं कर पाती, because जिस वक्त मुझे रुद्राक्ष का पता चला, initial 3 months I was in a dip. मैं बाहर नहीं जाती थी, उसको लेके नहीं जाती थी, मैं छोटी-छोटी बात पे रोना शुरू हो जाती थी. I had become very touchy, and so my father and my mother and my aunt and people in the family, they pulled me out. They said कि अगर आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने बच्चे को लेके, तो बच्चे में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा. तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. रुद्राक्ष को मॉल्स में लेके जाना, रुद्राक्ष को थिएटर्स में लेके जाना, मूवीज दिखाना. So we did that as family without worrying कि लोग क्या सोच रहे हैं, because शुरू में लेके जाना शुरू किया तो कुछ लोग आके आपको ऐसे पोक कर देंगे ना कि अरे मैडम कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, कुछ परेशानी है क्या, अच्छा ये ठीक नहीं लग रहा, so they'll again at your surface, and maybe you'll feel hurt at and then there were doctors कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में मनीषा. So मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ उस सिचुएशन से आज की तारीख में. Right. So I remember the story of Albert Einstein. Somebody spoke to me this morning कि उनके साथ भी same issue था कि 15-16 years तक he was considered completely dumb, and then doctors gave up onto him, and his parents were the one who were working into manufacturing unit, and they don't have much money to go beyond the government like hospitals and all. तो उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी, बट शायद उन लोगों ने गिव अप नहीं किया, एंड दे वर सो मच इनकरेजिंग कि अगर ये सही सिचुएशन नहीं होती, सो लॉट ऑफ इन्वेंशंस व्हिच ही डिड, शायद आज हम लोग बैठकर उस बारे में डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते या बात भी नहीं कर रहे होते. एंड मोर ओवर लाइक until unless like I don't have the confidence कि fine whatever the way I am I can carry myself, तो कोई बाहर से आके तो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करके नहीं चला जाएगा. बिल्कुल कोई ऐसी टॉनिक नहीं है है ना. सो कोई ऐसा टॉनिक नहीं है जो कोई आपको दे सकता है, कोई ऐसा पर लोग आपको केवल सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पुल आउट करना है खुद को उसमें से. और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली और एक ऐसी फैमिली मिली है जो जिसने हमेशा एक एग्जाम्पल सेट किया मेरे लिए. तो चाहे वो एक्सरसाइज को लेके है, मेरे फादर खुद से एक्सरसाइज करने लगते हैं, या बुआ करने लगती हैं, या मदर करने लगती हैं, जस्ट टू पुल मी अप की मनीषा अरे बहुत हो गया, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. So they start doing it themselves to pull me up. This is the only thing that we have in life, Pragyan, that is
That is pure sheer love and care that we receive from the family, and that is the only strength that you have. वही एक पावर या ताकत होती है जो आपको मिलती है. मैं रीसेंट इंस्टेंस बताऊंगी. हम लोग कोविड में रोज ऑफिस जा रहे हैं, रोज बाल धुल रहे हैं. मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे बिकॉज आप रोज केमिकल डाल रहे हैं सिर में, नो शैम्पूज एंड ऑल. So one day I just sitting with my father. I said, मैं बचपन में बॉयकट रहता था तो मैं सोच रही हूँ मैं बाल काट दूं, मतलब अपने मैं छोटे बाल कर. तो शायद कोई और फादर होते हैं कुछ, जैसे मुझे कई बार ट्रेनिंग से सुनने को मिलता है तो बोलते हैं नहीं नहीं लड़कियों बाल लंबे होने चाहिए, अरे तुम कैसी लगोगी, अरे लोग हंसेंगे, क्या तो ही डिडंट से, ही सेड आपकी तुम्हारी मर्जी है, आप करिए, आपको जो करना है. आई थिंक इट्स योर डिसीजन. So I think I had as long hair as you have. So I just went in the washroom and carried scissors with me and I cut my hair. So without worrying what people will say, what they'll think, what's my hair ultimately. Right, and you should be feeling comfortable wearing the hair, whatever you want to. What size, what way. Yeah, I mean, yeah. All right, so that brings to the end of our journey. I don't see any other comments coming across or any other questions coming across. So maybe we can uncover one more aspect in the end that you would like to go ahead and talk about any recent glass ceiling which you have broken, or maybe that can help us to understand that what else it could be. Pragya, I feel glass ceiling can be anything. So I'll just give you one example. We had a trainee, because of privacy issues, I can't name her. We had a trainee who had to actually put up a fight with her father to be able to get skilled at retail and take up a job. तो फादर चाहते थे कि उनकी शादी कर दी जाए. बच्ची और मदर अड़े रहे कि नहीं, बच्ची जो है उसको स्किल करना चाहिए और उसको आगे पढ़ना चाहिए और अपना करियर जो है वो बिल्ड करना चाहिए. एंड आई थिंक उसने 2 बार एडमिशन के लिए ट्राई किया. तो सेकंड टाइम में शी वाज एबल टू टेक एडमिशन और वो अपनी फीस भी खुद ही पे करती रही. सो आई थिंक वही चीज है कि आपने अगर लाइफ में कुछ ठान लिया है कि आपको अपने लिए करना है, उसमें मैं नेगेटिव नहीं बोल रही. आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ठान लिया है कि मैं ये नेगेटिव काम करूंगा. और मैडम ने बोला था, प्रज्ञा मैम ने और मनीषा मैम ने, कि ठान लीजिए तो करके रहिएगा. ठीक है. सो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में जो है बात कर रही हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ एक फोकस जो है कर लेते हैं, अपने करियर को लेके कर सकते हैं, अपनी स्टडीज एजुकेशन को लेके कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेके कर सकते हैं, तो वो चीज जो है उस पर फिर अड़े रहिए. उसको आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप में कन्विक्शन होगी, आप में बिलीफ होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज को. अगर आप में ही बिलीफ नहीं होगा, आप भी कंफ्यूज रहेंगे, कि अच्छा ये नहीं ये कर लेते हैं, अच्छा बगल वाले अंकल ने बोला है कि मेरी बेटी ने ये कोर्स किया तो वो कर लो, तो you will not be able to achieve it. So I feel remaining focused is another thing. Breaking your glass ceiling can be of fear, can be of an anxiety, can be of being non-focused in life, can be of being non-persistent, can be of being having no energy at all, to being a person who is full of energy और जिसके कमरे में एंटर होते ही लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और जाग जाते हैं. सो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर क्या खामी है, क्या चीज गलत है, किस पे इम्प्रूव करने की जरूरत है. वो आईना जो है वो देखना बहुत जरूरी है, जो आईना हम रोज सुबह देखते हैं उसके अलावा, कि हम में क्या गड़बड़ है, किसको हमें कोई इम्प्रूव करना चाहिए, कौन से पॉइंट को इम्प्रूव करना चाहिए. तो आई थिंक वो जब तक रहता है और अगर एक सेल्फ फोकस रहता है कि हाँ ये पॉइंट गलत है, इस पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो अचीव हो जाता है. लेकिन हमने जो बात की कि पहली बात इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरी बात आपको एक्शन में भी आना पड़ेगा. केवल इंटेंशन होने से कुछ नहीं होता है. आप केवल इंटेंट करते रहें कि हाँ ये होगा ये करूंगा ये करूंगी लाइफ में, तो होने वाला नहीं है जब तक कि आप एक्शन में नहीं आएंगे और आप उसके लिए जुट के काम नहीं करेंगे. आसपास के लोग केवल हेल्प कर सकते हैं, केवल आपको गाइड कर सकते हैं, केवल कुछ देर के लिए आपकी जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं. वो आप कुछ देर के आपकी बोगी का हिस्सा हो सकते हैं. बोगी में कुछ सवारियां आएंगी निकल जाएंगी, ट्रेन चलती रहेगी, आपकी जर्नी है. So I think ultimate it is your journey, your life, your direction, you decide. Yeah, and consequences can be anything, good, bad, both. Yes. Bad Yes, are the yes. lessons,
and Yes, good will yes. take you further. Yes, so I would say I would go to the extent that there are no good or bad experiences. It is always a good experience. So आपका good experience का मतलब है कि हाँ बहुत अच्छा हो गया, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ. अगर जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ तो वो bad है, ये कहना गलत है. That is a learning. That is a learning. So that again is a good thing for you if you learn and come out of it. अगर आप learn करके उससे बाहर ही नहीं निकल रहे और फिर से उसी गलती को दोहराते हैं, तो then it's a wrong thing. Then it's a bad thing. Yes. Yeah. That's like a loop. आपको पता है कि आपका ये loop है, आप घूम फिर के इसी चीज पर आएंगे, so you're not moving further. Yes, yes. I've seen many people who are not able to say no. मनीषा मैम, उसने मेरे से इतने पैसे मांगे, मैंने दे दिए. उसने मेरे पिछले पैसे भी वापस नहीं किए. तो मैंने कहा बोला कि पिछले पैसे वापस नहीं किए तो तुमने अगले क्यों दिए? मैं ना नहीं कर सकती. So आप उसी लूप में है ना. Right. आपको ना करना सीखना पड़ेगा. I mean, otherwise आप ऐसे ही फंसे रहेंगे उसी चक्कर में और लोगों को पैसे देते रहेंगे और लोग आपका पैसा वापस नहीं करेंगे. So it's like something what I believe is specifically related to the finances. या तो मैं ऐसी जगह कहीं लेन देन करूँ ही ना कि जहाँ से मुझे रिटर्न ना मिल रहा है, तो मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि मेरे पैसे चले गए. और else if you given across, that's fine. मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो ठीक है. हाँ, मैंने तो बच्चों का एग्जाम्पल दिया है प्रज्ञा. बच्चे फ्रेंड्स में दे देते हैं ना कि मैम उसने मेरा 700 रुपया देना है. तो मैंने बोला अच्छा उसने पिछला भी देना है 1000. तो तुमने अगला क्यों दिया? ठीक है. सो हम लोग लर्न नहीं करते आई थिंक. और जब लर्न नहीं करें तो मुझे लगता है वो बैड है. अगर हम लर्न कर रहे हैं तो देन दैट इज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस. सो इट इज अ गुड एक्सपीरियंस और इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इफ यू लर्न. It is a good experience and a bad experience if you don't learn. Right. Likewise, we want a healthy body, लेकिन ना हमें healthy diet करनी है, ना हमें कोई exercising करनी है, कुछ भी नहीं करनी है. Healthy body के intention से कुछ नहीं. मुझे रोज पिज्जा खाना है, मुझे रोज बर्गर खाना है और ये, लेकिन मेरे को हेल्दी बॉडी चाहिए. होने वाला नहीं है बॉस. जो आप फीड इन कर रहे हैं वही दिखाई देगा. Right from your thoughts to your body. So it's a food intake and it's a thought intake. Yep. Likewise, I'll give you a recent incident which has happened with me. So after 10 years, I again moved back into the night shift. And as soon as I moved into the night shift, so there were many people in my entire office and nearby my places. How would you manage night shift? Night shift करके खाने की रूटीन उल्टी हो जाएगी, biological cycle उल्टी हो जाएगी. Metabolism. Yeah, metabolism and everything as such. लेकिन मेरा जो रूटीन था, okay, in terms of my sleeping habits, in terms of my eating habit, वो तो change नहीं हुई ना. So I don't see any impact. So that's how, like, if you are focused in terms of your intentions, learning अपने आप होती रहेगी, चीजें life पे track पे रहेंगी. But अगर वो नहीं है, so then obviously you can't do anything about it. Absolutely. People gain lot of weight during this COVID, but आपको और मुझे देखकर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने weight gain किया. I've lost weight. I've lost weight. I've lost weight and I've understood that there's a life without maids. That you can do it without maids. You know. So ऐसा नहीं है कि हम उनको help नहीं करना चाहते थे. मतलब we have helped them, but they've gone back to their villages. So now it has become difficult to help them with the monthly salary. So and ultimately you have to do your housework. You have to manage that. You have to manage office, and you have to create a balance, which your family also creates with you. Yeah. Another interesting thing that I find across. So if you're a single mother, you are able to manage your personal life, your kids' life, your office, everything. However, as soon as it comes to the single father, he is not able to manage one part of the thing. So where exactly the glass ceiling breaks over there also? It's just few more minutes left out, so let's talk about it. I think I know a lot of male friends, Pragya. They are with me on the Facebook, who have been able to break that glass ceiling. There are people who have got married to females who were acid attack victims and have kids. So I think stereotyping is not the right way, but yes, I think being a single father or a single parent, as a father is a difficult task for men, because females are, I think, tweaked into multitasking. Right from so multitasking नहीं भी है तो लोग कर देते हैं ना. नेल जैसे होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा सीधे चलिए, सीधे नहीं तो ऐसा मुंडी ऐसा कीजिए, अच्छा घूंघट इतना होना चाहिए, अच्छा इसके ऊपर कैसे दिखाई दिया. So they are always thinking, कि कैसे हम ठीक लग सकते हैं
कि सबको अप्रूवल मिल जाए, सबका अप्रूवल मिल जाए कि हाँ अब तुम ठीक हो एज अ फीमेल. सो आई थिंक वो मल्टीटास्किंग राइट फ्रॉम डे वन रहता है, तो it becomes easy for females to like multitask, manage homes, manage kids. But I think now with times changing, males are very single parents doing a wonderful job as a single father, also. उनको भी पता है कि होम कैसे मैनेज करना है, बच्चा कैसे मैनेज करना है. So I think that aspect, and apart from that, some emotional aspect, I think that's the only difference that we people have. And we are emotionally more strong, as science has proven. We have lesser heart attacks, Pragya. Right, we give heart attacks, actually. we, we have lesser heart attacks. We are able to give birth to a new life altogether. So I think that itself is a sign of more strength. Right. So with this, it comes to an end of this amazing 1 hour session. I could wish I could talk to you more about, and it can go on, but yes, the time foundation is there, and we have to end with this. What I believe with this particular discussion that we had, okay, so मुझे नहीं पता कि हम लोग कितना डिफरेंस लेकर आ पाएंगे सोसाइटी में, बट अगर हमारे डिस्कशन से इतना भी डिफरेंस हुआ कि किसी को थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस आए कि देयर कुड बी सर्टेन थिंग्स, वो बहुत टाइम से कुछ करना चाहते हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ नोशंस इनटू देयर माइंड कि सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, कोई साथ में रहेगा या नहीं रहेगा. So break those barriers and move ahead. Absolutely. Move on, forget, forgive, drop the baggage, and move on. Move on. So thank you guys for listening to us and watching us today. And thanks for your time, Manisha, and have a wonderful weekend, all of you. You too, Pragya. Thank you so much.